Hello students. So now today we will discuss our next topic. The topic name is conservative and non-conservative forces. So first of all we will discuss the definition of conservative and non-conservative forces. So what are the conservative forces? If the amount of work done by or against a force depend only on the initial and the final position of the body and does not depend on the path followed by the body, then that force is said to be conservative. So what is the meaning of conservative? कि मीन्स किसी भी फोर्स द्वारा वर्क डन किया हो या उसके अगेंस्ट कोई वर्क डन किया हो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे बॉडी के, ना कि उस बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं. मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन by the force or against the force is depend only and only on its initial and the final position and does not depend on the path followed by the body is called conservative forces. The one of the example of conservative force is gravitational force. And what is the meaning of non-conservative forces? This is your non-conservative forces. So what is non-conservative forces? Means opposite of conservative. Means if the amount of work done by or against a force depend on the initial and the final position of the body, or does not depend on the initial and the final position of the body, or we can say depend on the path followed by the body, is called non-conservative force. Means conservative forces are opposite to the non-conservative forces. So now we will discuss or we will prove it by taking an example. So first of all we consider that, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will take an example. We say that कि this is a body of mass m, clear, and that is a floor, clear, and it is at height h from the floor, clear. So we have find that ki what is the work done to bring that body from this position A to this position B on the ground. We all know that if a body move in downward direction, the work done is equal to work done is equal to potential energy, and the potential energy of that body is mgh. Means if a body move from A to B position, the work done is mgh. So this body comes in the straight path. So we will take another example. If that body is not be come in the straight path, it comes in the different direction. Again, if this is this height is h, क्लियर. ये आपकी हाइट फिर से h है, ये आपकी A पोजीशन है और ये आपकी यहाँ पे है B पोजीशन. तो बॉडी पहले सीधी आती है यहाँ तक, वी से दैट की बॉडी यहाँ पे रीच कर गई, क्लियर. दिस पोजीशन इज वी कैन से दैट C. आफ्टर दैट कि ये बॉडी आपकी फिर जाती है यहाँ पे, दिस इज द D पॉइंट, क्लियर, और फिर वो D से आती है सीधा यहाँ पे नीचे. अब हम क्या निकाल लेंगे, A से C तक की आपकी एनर्जी और वर्क डन, और D से B तक का वर्क डन. सो इफ वी से दैट कि जो आपकी ये हाइट है, ये आपकी h1 है, और ये जो आपकी हाइट है ये आपकी h2 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वर्क डन फ्रॉम A to C. वर्क डन फ्रॉम A to C, कि A से C तक आने में क्या वर्क डन होगा. सो अगेन द बॉडी मास हैविंग m, क्लियर, द हाइट इज h1. सो जब बॉडी आपकी A से C पे आएगी तो आपका जो वर्क डन होगा, इट्स कम्स आउट टू बी, वी से दैट दिस W वर्क डन इज W1 एंड दिस वर्क डन इज W2 एंड दिस वर्क डन इज W3. सो दिस W वर्क डन कम्स आउट टू बी mgh1. दिस इज योर इक्वेशन 1. सो नाउ वर्क done from, this is C to D. So if we say seen here the height is h1, here is also height the h1. जो C पे वर्क डन होगा आपका वही वर्क डन D पे होगा. So if we want to find the net work done, this is W2 is comes out to be mgh2 minus mgh2. So this cancel with this and comes out to be 0. Means the work done from C to D is 0. क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हाइट आपकी चेंज नहीं हो रही है, हाइट आपकी सेम है.
क्लियर। तो अगर आपकी हाइट सेम होगी तो जो वर्क डन यहाँ पे है वही वर्क डन यहाँ पे होगा। तो अगर हम चेंज निकाल लेंगे तो वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा वर्क डन का। मीन्स जब बॉडी सी से डी जा रही है, अब इसका मतलब है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे की तरफ आती हुई है, अब आपकी जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मीन्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आई। तो इसका मतलब यहाँ पे से यहाँ जाने के अंदर जो आपका वर्क डन हुआ है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी आपका, वो आपका 0 है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द W3। तो वर्क डन फ्रॉम D to B, again this work done stored in the form of potential energy, that is mgh, and the height here is mgh2. So this work done is W3. So if you want to find the net work done, this work done, ये वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन जो आपका होगा दैट कम्स आउट टू बी W1 प्लस W2 प्लस W3। क्लियर। तो जब मैं W1 की वैल्यू पुट करूँगा तो MH1 प्लस 0 प्लस MGH2, तो हियर कम्स आउट टू बी MGH1 प्लस MGH2। अगर मैं यहाँ से MG आपका कॉमन अंदर आ जाएगा H1 प्लस H2। अगर मैं इस डायग्राम पे जाता हूँ दोबारा से फिर से कि दिस इज योर H1 एंड दैट इज योर H2, तो अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा रख देता हूँ यहाँ से तो दिस इज H2, तो H1 प्लस H2 कम्स आउट टू बी H। सो अगेन इफ वी विल पुट दिस हेयर कि द वैल्यू ऑफ H1 प्लस H2 कम्स आउट टू बी MGH। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब आपकी बॉडी सीधी आई थी तब भी वर्क डन आपका MGH था, और अब बॉडी ने अपना पाथ चेंज किया है तब भी आपका वर्क डन क्या है तब भी आपका वर्क डन क्या है MGH है। मीन्स वर्क डन A to B, work done A to B is MGH. Again if body comes from A to C, C to D and D to B, again the work done comes out to be MGH1। मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। मीन्स इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जिसमें हमने फोर्स का नाम बताया था द फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और द फोर्स डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स is conservative force because work done by the gravitational force does not depend on the path followed. It is only depend on the initial position and the final position. One more point beta here, if we discuss this, कि when we are moved from C to D point, your potential energy is 0. How कि if a body, we can say that कि if a body is on the ground, clear, and it is moved from this point to this, clear, so it is the body is on the ground, so in that case the body didn't rise to any height, clear। जो बॉडी आपकी किसी हाइट को राइज नहीं करी, वो अगर बॉडी आपकी हाइट को राइज नहीं करेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। सिमिलरली जब हम C से D जा रहे हैं तो C से D जाते हुए हम क्या देखते हैं कि बॉडी का अगर हम ये कह देते हैं कि ये एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बॉडी इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स वो C से D जा रही है, बट द बॉडी डजंट फॉल, ना तो नीचे आ रही है ना बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इन दोनों केस में हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी ने हाइट ही गेन नहीं की। अगर बॉडी ने हाइट नहीं गेन की तो उस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, 0 होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, वी हैव डिस्कस अर्लियर इन द क्लास 9th। मीन्स एनर्जी ऑफ बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be changed into one form to another form, clear। मीन्स किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी की वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, क्लियर। अब आपके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हाउ द एनर्जी वेरियस एनर्जी फॉर्म चेंज। मीन्स द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, कि जो डैम में वाटर स्टोर होता है दैट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब उस डैम में से हम वाटर को छोड़ देते हैं तो दैट फॉलन वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। वन मोर एग्जांपल वी हैव सीन इन आवर हाउसेस, कि जो आपके घर में आती है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन जब हम बल्ब को ऑन कर देते हैं दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। मीन्स मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन यू विल सीन अराउंड यू,
क्लियर. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन वी प्रूव दैट कि एनर्जी कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेशन. क्लियर. दिस इज आल्सो डन इन द क्लास 9th. ये भी हमने क्लास 9th में किया था. तो फर्स्ट हम कुछ कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर दैट कि दिस इज अ ग्राउंड. ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे. क्लियर. दिस इज अ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस. अ बॉडी इज ऑन द हाइट h. क्लियर. ये बॉडी आपकी हाइट h पे है. दिस इज हाइट h एंड दिस बॉडी हैविंग मास m. इस बॉडी का मास आपका क्या है m है. अब इस बॉडी की हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे वेरियस पॉइंट के ऊपर. तो अगर ये आपका पॉइंट A है. क्लियर. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इट्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट A. वी से दैट कि ड्यूरिंग इट्स मोशन कि दिस बॉडी इज कम्स टू दिस पॉइंट इज B पॉइंट. क्लियर. और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है A से लेके B तक का, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x. क्लियर. and we know that the remaining this distance or this height comes out to be h minus x, because this full is h, this is x, so it comes out to be h minus x. And after some time this body hit the ground and reach at the point C. Again its mass is m. Clear. So all these 3 point A और B और C के ऊपर हमने इस बॉडी की टोटल एनर्जी निकालनी है. So if we want to find that कि at point A the body is at rest. So first of all total energy at point A. So the total energy we will say here, the total energy is potential energy. What is its potential energy? Its potential energy is, its mass is m, it is a height at h, so its potential energy comes out to be mgh. Clear. What is its kinetic energy? So at the point A the body is at rest. जो body है वो किस में है बेटा, rest में है. तो at point A body is at rest, so we know that the half mv square is the formula for kinetic energy. So if body is at rest, so this v is equal to 0. अगर v आपका 0 होगा तो आपकी जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 0. सो अगर मैं लिखता हूँ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपका होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. तो जो आपकी पोटेंशियल है वो आपकी mgh है और जो आपकी काइनेटिक है वो 0 है. तो टोटल एनर्जी आ गई mgh. मीन्स द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज mgh. सो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एनर्जी एट पॉइंट B. इसके बाद हमने एनर्जी निकालनी है B पॉइंट के ऊपर. अब अगर हम B पॉइंट के ऊपर आपको देखते हैं कि व्हाट इज द हाइट एट B पॉइंट. जो हाइट है B पॉइंट के ऊपर वो आपकी h माइनस x है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड हेयर द टोटल एनर्जी at point B. So first we will find here potential energy at point B. So you know that potential energy is mgh. So what is height for this point B? This point B height is h minus x. So here comes out to be mg, here comes out to be h minus x. So it's potential energy. Now we have to find the kinetic energy. So kinetic energy we know that half mv square. Clear. तो this is half, this is m. So from point A to B जब बॉडी आई है तो हमने इसके लिए वेलोसिटी निकालनी है. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? So now we will find the velocity. We all know that कि जो आपकी बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी एक्सेलरेशन g होगी और बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका x किया है. सो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो इनिशियली बॉडी थी जो रेस्ट में थी. अगर इनिशियली बॉडी आपकी रेस्ट में होगी तो वी नो दैट कि जो u है वो आपका होगा 0. तो अगर u 0 होगा तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन प्लेस ऑफ a comes out to be g in place of s. what is distance travel? the distance travel body is x. क्लियर. तो यहाँ पे आपकी जो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई 2gx. अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना बेटा कि जो बॉडी है प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे आ रही है तो ये x भी किसका होगा, माइनस का होगा और g की वैल्यू ऑलरेडी हम माइनस की लेते हैं. तो अगर ये दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस आ गया. तो द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू v स्क्वायर कम्स आउट टू बी gx. सो वी विल पुट दिस वैल्यू
दिस वैल्यू विल पुट इन दिस, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस वी स्केयर की वैल्यू को, यहाँ से इस वी स्केयर की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पुट करूँ तो यहाँ पे का हाफ, here comes out to be m in place of v square comes out to be 2gx, here comes out to be 2gx, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, the value comes out to be mgx. Now what we have to find? We have to find the total energy. So again the total energy जो आपकी आएगी वो क्या होगी? दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेटिक एनर्जी। तो जो कनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी एम जी एच माइनस एक्स, ये थी आपकी पोटेंशियल और ये आपकी एम जी एक्स। तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। तो ये एम जी एक्स से आपका एम जी एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अगेन एनर्जी क्या है आपकी? एम जी एच आई। तो जब हमने पॉइंट बी पे निकाल ली थी तो वो थी आपकी एम जी एच, फिर से पॉइंट ए पे भी क्या थी? एम जी एच थी, और पॉइंट बी पे भी आपकी क्या है? एम जी एच आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, कि सी पॉइंट पे क्या होगी। तो फिर से जब हम सी पॉइंट देखते हैं तो ये आपका है सी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट। तो जब आप सी पॉइंट पे आते हो तो जो बॉडी है वो ग्राउंड के ऊपर है। अगर बॉडी ग्राउंड पे है तो हाइट क्या है? 0 है। अगर हाइट 0 है तो बेटा यहाँ से क्लियर है कि अगर हाइट 0 होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? 0 होगी। तो नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं एम जी एच, बट एट पॉइंट सी द एम इंटू जी हेयर कम्स, बिकॉज ये आपकी 0, क्योंकि हमें पता है एट सी के ऊपर जो आपका एच है वो 0 है। अब हमने निकालनी है कनेटिक एनर्जी। तो जो कनेटिक एनर्जी आपकी होगी वो होगी हाफ एम वी स्केयर। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वी स्केयर वैल्यू। तो जब आपकी बॉडी ए से बी पे आई थी तो जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो एक्स था। अब जब बॉडी ए से सी पे आएगी तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? वी नो दैट द ए से सी तक का जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एच किया है। तो अब फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? We know that third equation is v square minus u square is equal to 2as. So if we will put value here, again u is your 0 है। अब a आपका फिर से माइनस का g होगा, और जो s पहले x था, पहले आपका क्या पुट किया था हमने? x, we will this x we will put, हमने x पुट किया था, लेकिन अब हमें पता है कि जो ये आपका s है ये आपका h है। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा आपकी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू में माइनस एस की जगह आपका आ गया h, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 2gh। सो अगेन दिस v स्केयर वैल्यू वी विल पुट इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू में m इंटू में वैल्यू 2gh, तो हेयर हम सॉरी 2gh, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई mgh। तो अब मैंने निकली है टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी आपकी वो आपकी आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल क्या थी? 0 थी, और काइनेटिक क्या ये एम जी एच आई है, तो फिर से क्या आ गया? एम जी एच आया। तो हमने क्या नोट किया? हमने क्या नोटिस किया कि जो आपका पॉइंट ए था इसके ऊपर भी एनर्जी क्या थी? एम जी एच थी। पॉइंट बी के ऊपर भी क्या थी? एम जी एच थी। और पॉइंट सी के ऊपर भी क्या थी? एम जी एच थी। मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो तो आपकी एम जी एच है। सिर्फ हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे पहले सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्लियर, और उस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ अमाउंट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गए बी पॉइंट पे आते हुए, और सी पॉइंट पे आके जब हमने देखा कि आपकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपकी किस में कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो तो सेम है, लेकिन जो आपकी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। वी विल डिस्कस विद वन एग्जाम्पल कि हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका सरफेस है और ये कोई बॉडी है बेटा एट हाइट h के ऊपर, क्लियर। तो अगर हम कह देते हैं कि इस हाइट के ऊपर इस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो 200 है, क्लियर, और हमें पता है कि बॉडी इस हाइट के ऊपर रेस्ट में है, तो ये जो टोटल एनर्जी है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी 200, क्योंकि यहाँ के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो 0 थी। मीन्स इस हाइट के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी 200 है,
और ये 200 किसकी वजह से बनी है, सम ऑफ कनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल आपकी 200 थी और कनेटिक 0 थी। कनेटिक 0 इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे बॉडी किस पे है, रेस्ट में है। अब हम कह देते हैं कि बॉडी आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल हाफ में आ गई। मान लो अगर ये आपकी हाइट टोटल क्या थी, h थी, और जो बिल्कुल हाफ वे में आ गई मीन्स इस हाइट के ऊपर आ गई तो h/2 पे। तो अब इस h/2 के ऊपर अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल लूँगा, इट्स अगेन कम्स आउट टू बी 200। लेकिन जो ये 200 एनर्जी बनेगी ये अकेली पोटेंशियल थी पहले तो, लेकिन अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि जो ये टोटल एनर्जी बनेगी वो कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से ही बनेगी। अब जो यहाँ पे 100 आपकी होगी कनेटिक और 100 आपकी क्या होगी, पोटेंशियल। मीन्स फिर से अगर हम देखते हैं टोटल एनर्जी तो 200 ही है, यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल थी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आधी किस में कन्वर्ट होगी, कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब जब बॉडी ग्राउंड पे रीच करेगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो जाएगी 0, बट जो टोटल एनर्जी है इट इज़ रिमेन 200, वो फिर से 200। इसका मतलब यहाँ पे जो कनेटिक एनर्जी आई वो आपकी 200 आई। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर। और जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी तो सारी की सारी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जब बॉडी ने ग्राउंड को हिट किया तो ये जो आपकी कनेटिक एनर्जी थी, दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी, कि जब कोई बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपका सिंपल सा पॉइंट था कि जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, ओनली एंड ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। Now the next topic is equivalence of mass and energy. What is the meaning of equivalence of mass and energy? Means जब mass and energy are interconvertible. Clear? ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था, law of mass and energy. Means mass and energy are interconvertible. Means mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. So there is a relation which is given by the Einstein. जो Einstein equation दी थी वो था आपका कि जो आपका E होगा, this E इज इक्वल टू mc²। अभी जो c है यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, सो दीज आर कन्वर्टेड बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। सो हेयर m इज द मास, m आपका क्या है, मास है, और E आपकी क्या है, एनर्जी है। मीन्स यहाँ पे हमें जो पता लग रहा है, हमें यहाँ पे ये पता लगा है कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो दिस इज नोन एज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पावर। व्हाट इज पावर? सो द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मीन्स कितने टाइम में कोई कितना काम कर रहा है उसको हम उसकी पावर कहते हैं। क्लियर। अगर कोई पर्सन कम टाइम में ज़्यादा काम करता है तो उसकी पावर ज़्यादा है, अगर कोई कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा उसकी पावर ज़्यादा है, अगर कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में कम काम करेगा तो उसकी पावर कम है। मीन्स कोई पर्सन किस रेट से काम कर रहा है, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर इज रिप्रेजेंट बाय P, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस P इज इक्वल टू W/T, मीन्स वर्क अपॉन टाइम। अब अगर मैं ऐसे यूनिट निकालें, द यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो इट्स यूनिट कम्स आउट टू बी जाउल पर सेकेंड विच इज़ नोन एज वोट, जिसको हम वोट कहते हैं। अब जो आपकी पावर की यूनिट है उसको हम वोट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके डिफाइंड 1 वोट, कि 1 वोट को डिफाइंड करो। तो सिंपल सी बात है कि व्हेन 1 जाउल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी 1 जाउल, कि जब कोई पर्सन 1 सेकेंड में 1 जाउल काम करेगा तो उसकी जो पावर होगी वो आपकी 1 जाउल होगी, सॉरी 1 वोट होगी। क्लियर। अब ये तो आपकी थी छोटी यूनिट, इसके बाद किलो और मेगा आपकी वोट भी यूनिट होती हैं। अब किलो वोट को हम KW से लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1000 वोट। क्लियर। और वी कैन सिंपली राइट इट 10⁻³ वोट। सिमिलरली आपकी होगी एक मेगा वोट, दिस इज इक्वल टू 10⁻6 वोट। मीन्स द वोट इज द स्मॉलर यूनिट and power have a large unit also which is known as kilowatt and megawatt. And one more point here कि जो आपकी पावर है वो वर्क अपॉन टाइम से लिख सकते हैं, और दिस यूनिट इज जाउल अपॉन सेकंड। तो ये आपके था पावर के बारे में। अब नेक्स्ट आपका जो हम डिस्कस करेंगे पावर एंड एनर्जी। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पावर एंड एनर्जी आल्सो। व्हाट इज दैट रिलेशन? वी रिटन हियर दैट कि द पावर इज इक्वल टू वर्क
अपॉन टाइम। हमने लिखा था कि जो पावर आपकी वो है वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से समझता हूँ कि वी ऑल नो दैट कि द वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम इसका नीचे टाइम लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालना चाहता हूँ, योर एनर्जी कम्स आउट टू बी, दैट कम्स आउट टू बी पावर इनटू में टाइम। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड पावर। मीन्स जो एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पावर इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि जो पावर आपकी किसकी फॉर्म में, फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो पावर है बेटा वो आपकी होती है वर्क अपॉन टाइम। सबको पता है पावर वर्क अपॉन टाइम है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि वी ऑल नो दैट द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एफ इंटू में, यहाँ पे मैं लिख दिया एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वी ऑल नो दैट कि द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी के। तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ से आपका आ जाएगा फोर्स इंटू में वेलोसिटी। सो दिस इज अनदर रिलेशन बिटवीन द पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स। सो ये हमारा टॉपिक था पावर के बारे में। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, इसकी यूनिट वोट होती हैं। फिर 1 वोट को डिफाइन करना है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड द पावर इज सेड टू बी 1 वोट। किलो वोट और मेगा वोट इसकी बड़ी यूनिट भी होती है। उसके बाद पावर और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या, एनर्जी होती है पावर इनटू में टाइम, कि पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट जो लिखा था एट द एंड द रिलेशन बिटवीन द पावर फोर्स एंड वेलोसिटी, मीन्स पावर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।